1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 2 चैप्टर 23 वर्स से 3 चैप्टर 1 वर्स से 12 वर्स। लेविटिकस 11 चैप्टर 12 चैप्टर। मरकुस रचे सुसमाचार 2 अध्याय 23 वचन से 3 अध्याय 1 वचन से 12 वचन तक। लैव्य व्यवस्था 11 अध्याय 12 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आत्मा, इन वचनों के अंदर से हमें ज्ञान दीजिए, हमें समझ दीजिए, और हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि आप जैसे महान हो, वो महान, वो सामर्थ और वो शक्ति और किसी के पास नहीं है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय खुदा हमारा घर, हमारा सारा एटमॉस्फेयर, शैतान जितना ओवरटेक करने की कोशिश करेगा उतनी ज़्यादा परमेश्वर पिता तेरे स्वर्ग के अंदर से पनिशमेंट्स उनके ऊपर रिलीज हो जाएगा। हम धन्यवाद करते तू अधर्म के जोर को तोड़ने का निश्चित प्रबंध रखा है। तूने कहा मैंने लोहा बनाया है तो लोहा तोड़ने वाला भी बनाया है। मेरे परमेश्वर, हम इस बात के तसल्ली में है कि तूने परमेश्वर हम पर ज्यादती करने वालों को पनिश करने के रास्ते रखे हैं। थैंक यू फादर गॉड। नासरी यीशु मसीह के नाम में ये वचनों के अंदर की शांति हम में समा जाए और हम परमेश्वर तुझ में मगन रहे। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 23 वचन से। सब्त का प्रभु ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन, मार्क 2 चैप्टर 23 वर्स से हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। एंड इट केम टू पास दैट ही वेंट थ्रू द कॉर्न फील्ड्स ऑन द सैबथ डे, एंड हिज डिसाइपल्स began as they went to pluck the ears of corn. And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the Sabbath day that which is not lawful? And he said unto them, Have ye never read what David did when he had need and was an hungered, he and they that were with him, how he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him. And he said unto them, The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Chapter 3. Christ healeth the withered hand. He chooseth 12 apostles, refuteth the calumny of the scribes, etc. First verse. And he entered again into the synagogue, and there was a man there which had a withered hand. And they watched him whether he would heal him on the Sabbath day, that they might accuse him. And he saith unto the man there which had the withered hand, Stand forth. And he saith unto them, Is it lawful to do good on the Sabbath days, or to do evil, to save life, or to kill? But they held their peace. And when he had looked round about on them with another, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out, and his hand was restored whole as the other. And the Pharisees went forth and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed him, and from Judea, and from Jerusalem, and from Idumea, and from beyond Jordan. And they bought Tyre and Sidon. A great multitude, when they had heard what great things he did, came into him.
unto him. And he spake to his disciples that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him. For he had healed many, insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues and unclean spirits. When they saw him, fell down before him and cried, saying, Thou art the Son of God. And he straitly charged them that they should not make him known. मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 23 वचन। सप्त का प्रभु। 23 वचन से आगे, ऐसा हुआ कि वह सप्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सप्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सप्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सप्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी स्वामी है। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। 3 अध्याय पहले वचन से। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सप्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सप्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास के से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा न सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आत्मा, ये वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।